اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے ہر مہینے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے اور چینل کو چلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور آج پھر میرا یہاں سے لمبا سفر ہے۔ جی ہاں، آج رات ریاست مہاراشٹر کے اکولا ضلع کا ایک شہر ہے اکوٹ، اور پچھلے جمعہ کو بھی میں وہیں اسی شہر میں گیا تھا۔ آج رات بھی اکوٹ شہر میں مکتب فیض ابرار کا بہت شاندار پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ انجمن فلاح ملت کی سرپرستی میں یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ میں اکوٹ، شیگاؤں، اکولا اور لوہارا، ایسے ہی آس پاس کے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آج بعد نماز مغرب مجیدیہ پلاٹ میں یہ پروگرام ہوگا، پٹھان کرانہ کے پاس۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام میں حاضر رہیں اور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت پڑوسی ملک افغانستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور طالبان حکومت نے باقاعدہ خواتین کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یا یونیورسٹی، جامعات کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ اسکول جانے پر پابندی کی وجہ سے طالبات نے دینی مدرسوں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے پورے افغانستان میں اسلامی اسکولوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ثانوی اسکولوں پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد نوعمر لڑکیاں تیزی سے ان کلاسوں میں شرکت کر رہی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق حجاب سے اپنے چہرے اور بالوں کو ڈھانپنے والی 16 سالہ فرح نے کہا کہ ہم افسردہ تھے کیونکہ ہمیں تعلیم دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے بعد میرے خاندان نے فیصلہ کیا کہ مجھے کم از کم یہاں آنا چاہیے۔ ہمارے لیے اب یہ مدرسہ ہی ایک جگہ ہے، ریاضی اور ادب کے بجائے اب یہ لڑکیاں عربی میں قرآن پاک سیکھنے پر توجہ دے رہی ہیں۔ جو لوگ آیات کی تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں وہ الگ سے مطالعہ کرتے ہیں، جس میں ایک استاد اپنی مقامی زبان میں متن کا ترجمہ اور وضاحت کرتا ہے۔ AFP نے کابل اور جنوبی شہر قندھار میں 3 مدارس کا دورہ کیا، جہاں علماء نے بتایا کہ طالبات کی تعداد گزشتہ سال سے دوگنی ہو گئی ہے۔ فرح کے وکیل بننے کی خواہش اس وقت ختم ہو گئی تھی جب طالبان حکام نے لڑکیوں کو ثانوی اسکول جانے سے روک دیا اور مہینوں بعد خواتین کے یونیورسٹی جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کے خواب بکھر گئے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں،
बशार अल असद जो शाम का प्रेसिडेंट है, इसने पुतिन से मुलाकात की, यानी रूस के सदर से मुलाकात की, यूक्रेन के साथ जंग में रूस की हिमायत का ऐलान किया, तुर्किया से मफाहमत की कोशिश की खबरें भी सामने आ रही है। बशार ने कहा कि हम यूक्रेन की जंग में रूस के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं क्योंकि उसे पुराने और नए नाजी इज़्म का सामना है। उन्होंने अपने रूसी हम मनसब से ये भी कहा कि उनके इस दौरे से इक़्तिसादी ताउन में ठोस नतीजे बरामद होंगे। पुतिन और बशार अल असद के दरमियान यह मुलाकात बुध के दिन मास्को में हुई। मुलाकात अंकारा और दमिश्क के दरमियान मफाहमत के हुसूल के लिए क्रेमलिन की तेज़ तर कोशिशों के तनाजुर में रही है। इस मुलाकात के आगाज़ में रूसी टेलीविज़न पर नशर होने वाली इस मुलाकात के आगाज़ में पुतिन ने मास्को और दमिश्क के दरमियान ताल्लुकात की तरक्की का खैर मकदम किया, वेलकम किया और इस बात पर जोर दिया कि रूस शाम और तुर्किया में गुज़िश्ता माह आने वाले ज़लज़ले के बाद इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी जारी रखे हुए हैं। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। इस वक्त इजराइल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इजराइल में सियासी बहरान, जो पॉलिटिकल रस्साकशी है और पॉलिटिकल विवाद और झगड़े हैं, वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इसलिए अब वज़ीर आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने जो गैर मुल्की दौरा था उनका, उसको शॉर्ट कर दिया, मुख्तसर कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म याहू के दफ्तर ने कहा है कि उन्होंने इस हफ्ते जर्मनी के तयशुदा दौरे की मुद्दत को शॉर्ट कर दिया। दफ्तर ने पहले कहा था कि नेतन्याहू ने कौमी सलामती की पेश रफ्त पर मुशावरत की है। क्या दौरे के दौरानियों को कम करने और मुशावरत के दरमियान कोई रब्त था, इस हवाले से वजाहत नहीं की गई है। लेकिन नेतन्याहू को पहले मंसूबे के तहत बुध को जर्मनी के लिए रवाना होना और जुमा को वापस आना था। ताहम दौरे को मुख्तसर करते हुए नेतन्याहू अब जुमेरात को ही इजराइल वापस पहुंच जाएंगे। नेतन्याहू की सरबराही में दिसंबर में इक़्तिदार संभालने वाली कौम परस्त और मजहबी जमातों की मखलूत हुकूमत को अदलिया में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर बेमिसाल एहतजाज का सामना है। यानी इतनी खबर पक्की है कि इजराइल में अब सियासी झगड़े उरूज पर है। आइए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मक्कतुल मुकर्रमा से। जी हाँ, मक्कतुल मुकर्रमा से हमारे रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम मारूली ने बताया कि मक्कतुल मुकर्रमा के जो हर दिल अजीज़ इमाम हैं शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, इनको इमाम काबा के तौर पर, काबा के इमाम होने के तौर पर 40 साल मुकम्मल हो गए हैं। मक्का मुकर्रमा से अरब मीडिया के मुताबिक शेख अस्सुदैस ने 22 शाबान 1404 में हरम शरीफ में इमामत और खिताबत तकरीर का आगाज़ किया था। अरब मीडिया ने मज़ीद बताया कि शेख अस्सुदैस ने हरम शरीफ में फ़राइज़ का आगाज़, यानी जो फ़र्द नमाज़ें पढ़ाने का आगाज़ नमाज असर की इमामत से किया था। और आज आप जानते हैं कि शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की क़िरत को सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। और मैं ख़ुद बचपन से शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस का बड़ा दीवाना हूँ, बड़ा मद्दाह हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी मैं भी नकल करने की कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ, क्योंकि शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस का जो अंदाज़ है वो दिल को और दिमाग को लुभाता है। आइए बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल हुए हैं और इन ताल्लुकात को बहाल करने में सबसे बड़ा रोल और किरदार अगर किसी का रहा है तो वो चीन का है, चाइना का है। सऊदी अरब का भी बड़ा बयान आया है। सऊदी अरब ने कहा है कि चीन का ईरान पर गैर मामूली असर है, रसूख है। सऊदी अरब ने कहा कि मुआहदे की पासदारी हर हाल में करनी होगी। सऊदी अरब के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि चीन को ईरान पर असर और रसूख हासिल है और अगर वो बीजिंग में सऊदी अरब के तयशुदा मुआहदे का एहतराम नहीं करता है तो तेहरान के लिए इसकी वजाहत करना
मुश्किल होगा। ईरान और सऊदी अरब ने चीन में मुनक़िदा मुज़ाकरात के बाद दो तरफ़ा सफ़ारती ताल्लुक़ात बहाल करने से इत्तेफ़ाक़ किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता तक़रीबन 7 साल से ताल्लुक़ात कशीदा चले आ रहे थे। इस सऊदी उज़्ज़ार ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर कहा कि चीन एक मुनफरिद अपोजिशन में है, क्योंकि इसके ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ गैर मामूली दोस्ताना ताल्लुक़ात उस्तवार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में सबसे मुश्किल मौज़ूआत यमन, मीडिया और चीन के किरदार से मुताल्लिक़ थे। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।